Hello students, welcome to the second video of this lesson. In this video we are going to see the point numbers in between rational numbers. Okay, rational numbers के बीच में यानी दो rational numbers के बीच में कौन से numbers आते हैं. Okay, that finding out such numbers. Okay, let us see first point. Write all the natural numbers between 2 and 9. Word is used natural numbers यानी counting numbers. 2 or 9 की in between 2 and 9 which numbers are there? So now 2 is the smallest number, 9 is the biggest number here. Okay, so in between 2 and 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this last one is the 9. These numbers are in between 2 and 9. Which numbers? 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These numbers are there between the numbers, natural numbers. Point number 2. Write all the integers. Okay, focus on this integers. Okay, what is the meaning of integers? Positive numbers, negative numbers and 0. Okay, all are called as integers. Between -4 and 5. Okay, now in these two, which is the smallest number? -4. Which is the biggest number? 5. So in between -4 and +5, how many numbers are there? So -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and then last one is the 5. Okay, so these are the numbers in between -4 and 5. Alright, then now which rational numbers are there between 1/2 and 3/4? Okay, तो क्या इसका आंसर इजीली लिख सकते हो कि तुम लोग जैसा ये आंसर्स वी हैव रिटन वेरी इजीली. नाउ कैन यू टेल वेरी इजीली दिस? नो, नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बाकी के कुछ पॉइंट सकते हैं. लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. ओके, हियर शॉर्ट एग्जांपल्स आर गिवन. राइट, व्हाट इज द एग्जांपल? Now let us look for the rational numbers between the two rational numbers 1/2 and 4/7. Here two rational numbers are taken 1/2 and 4/7. Okay, तो अब क्या करना है? Now to do that, let us convert these numbers into fractions with equal denominator. तो क्या किया? तो ये दोनों fractions ऐसे कैसे convert किए? So that they will have same denominator, equal denominator. तो 1/2 is converted into 7/14, 4/7 is converted into 8/14. अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. ओके, 7/14, 8/14. राइट, नाउ 7 and 8 आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव यानी एक दूसरे के बाद ही आते हैं, और 7 और इन बिटवीन 7 and 8 नो नंबर इज देयर, ऐसा हमें लगता है. ओके, बट are 7/14 and 8/14 consecutive rational numbers? 7/14 और 8/40 consecutive rational number है क्या? Okay, 7 and 8 are consecutive natural numbers. Okay, फर्क है ये जो यहाँ पर जो फोकस करना है, कहाँ पर फोकस करना है कि 7 and 8 are consecutive natural numbers, लेकिन 7/14 and 8/40 are they consecutive rational numbers? ओके, क्वेश्चन पूछा है. द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर कैन बी इंक्रीज्ड. डिनोमिनेटर बढ़ा सकते हैं इनका. ओके, देन द न्यूमरेटर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द सेम नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, अब क्या किया है उसका? 7/14 एंड 8/14. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर इन बिटवीन देम. तो 7/14 को 10 से मल्टीप्लाई किया. आंसर वी गॉट 70/140. 8/14 is multiplied with 10, we got answer 80/140. दोनों को 10 से डिवाइड किया. ओके, तो अब हमें दो फ्रैक्शन मिल गए. कौन से फ्रैक्शन मिल गए? 70/140 एंड 80/140. राइट, नाउ अब इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्या? नाउ वी कैन राइट एज मेनी एज 71/140, 72/140, 73/140, 74/140, 75/140, like this. We can write till
80. Right? In this way, by increasing the denominator, okay, denominator अगर बड़ा किया तो न्यूमरेटर भी बड़ा होता है. Okay, and then we can write the numbers between the two rational numbers. Okay, here the same explanation is given here. Okay, अगर 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना है और ज्यादा नंबर चाहिए तो यू कैन मल्टीप्लाई विथ 100. हियर इट इज मल्टीप्लाइड विथ 100. 700 अपॉन 1400. ओके, ऐसा हियर यू विल गेट 800 एंड 1400. हियर यू कैन राइट 100 नंबर्स. इज इट करेक्ट? अब तो आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया आई होगी कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन द टू rational numbers even if they are consecutive natural numbers. Right? Thus, when rational numbers are converted into equivalent fractions with increasingly bigger denominator, more and more rational numbers which lie between them can be expressed. Okay? क्या करना होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करो. ओके, न्यूमरेटर ऑटोमेटिक आप लोगों को अलग अलग मिल जाएंगे तो उसमें से वी कैन राइट द numbers between the two rational numbers. Now here example is given. For example, let us find numbers between the rational numbers between 1 upon 2 and 3 upon 5. Right? 1 upon 2, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 upon 10. 3 upon 5, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 upon 10. ये क्यों किया? दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल किए. ओके, 10 10. So we got two fractions, 5 upon 10, 6 upon 10. Okay. Now if you see these two fractions on the number line, देखो यहाँ पर 0 है. Okay, 0 and here 1 is there. Okay, this 1 unit is divided into 10 parts. You see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Why it is divided into 10 parts? Because we want to show the fractions which are having denominator 10. Now if you observe this number line, 5 upon 10 and 6 upon 10. Okay, these two are consecutive numbers. Okay, यानी एक दूसरे के बाद आने वाले. तो अब ये दो नंबर, इन दो नंबर के बीच में द वे हाउ टू फाइंड आउट द नंबर. ओके, एक मेथड तो हमने पहले देखी है कि डिनोमिनेटर बढ़ाओ तो न्यूमरेटर बढ़ता है, तो उसमें से मिलता है. नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड. ओके, टू फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स. ओके, करना है क्या इस मेथड में? क्या करना है? अब एक सिंपल सा टेक्निक है. ये दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो. ओके, सेम टेक्निक इज शोन हियर. 5 upon 10 प्लस 6 upon 10 और उसको 2 से डिवाइड किया, म्हणजे यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 2 यानी उसका आधा किया. ओके, मतलब 2 से डिवाइड किया. ओके, तो 6 प्लस 5 प्लस 6 11 अपॉन 10 प्लस 10, सॉरी दिस इट इज कॉमन डिनोमिनेटर 10. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 20. तो 11 upon 20 क्या हो गया उसका? द नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स. यानी कौन से भी अगर दो रैशनल नंबर है तो उनका एडिशन करो और उनको 2 से डिवाइड करो, मतलब 1 upon 2 से मल्टीप्लाई करो. राइट? द सेम नंबर सपोज हियर. नाउ 6 upon 10 माइनस 11 upon 20. 11 upon 20 जो है, ओके, इससे ये नंबर किससे सेपरेट किया है? 6 upon 10. अब देखो 5 upon 10, 6 upon 10. ये जो 11 upon 20 ये कौन सा है? द नंबर इज विच इज लाइंग इन बिटवीन दीज टू नंबर्स. यानी वो 6 upon 10 से छोटा है एंड 5 upon 10 से बड़ा है. ओके, अब इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर बिटवीन दीज टू, ओके, तो क्या करना है? तो इन सेम मेथड यूज फॉर दिस. राइट? So now remember, total 2 methods are there. The first, what is the first method? Numerator, denominator बढ़ाओ.
न्यूमरेटर बढ़ता है, you will get such numbers. Okay, and second method is there which जो दो मिले हैं रैशनल नंबर्स, उनके डिनोमिनेटर इक्वल करो. ओके, उन दोनों की एडिशन करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो. ओके, दिस इज द second method. You will get the numbers between the rational numbers. Alright, now from this what we have learned, there are innumerable rational numbers between any two rational numbers. यानी कौन से भी दो रैशनल नंबर होने दो. ओके, सपोज 5/10, 6/10, हमें ऐसा लगेगा इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन यू कैन राइट एज मेनी एज नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू. ओके, कितने भी लिख सकते हो. नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 23. Here is practice set number 23. Question is, write 3 rational numbers that lie between the two given numbers. Number 1. For example number 1 is given 2/7, 6/7. Very simplest example. Okay. तो हम लोगों को मालूम है 2/7, उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 3/7, 4/7, 5/7. Okay. And last one, this already 6/7 is. So these 3 are the numbers between the given two rational numbers. Isn't it simple? Okay. यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग लिख सके. ओके, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है. ओके, लेट अस मूव टू सेकेंड एग्जांपल. 4/5 and 2/3. Now here denominator of these two rational numbers is different. So फर्स्ट मेक इट इक्वल. सो ये जो 4/5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये 3 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस आल्सो शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3, दिस विथ 5. इज इक्वल टू 4 3s are 12/15 एंड दिस 10/15. राइट. अब इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में नाउ अगर डायरेक्टली अगर हमने सोचा तो ओनली 11/15 इज देयर. राइट, एक ही नंबर मिल रहा है तो उसका डिनोमिनेटर और बढ़ाओ. ओके, तो और कैसे बढ़ाना है? 12/15 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24/30 एंड हियर 20/30. अब मिल जाएंगे ना 3 नंबर. ओके, सो द नंबर्स बिटवीन 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स कौन से हैं? 21/30, 22/30 एंड 23/30. These are the 3 rational numbers which are present between which numbers? क्वेश्चन क्या है? 4/5 एंड 2/3. इन दोनों के बीच में द नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 2/3 आर 21/30, 22/30, 23/30. Right. Now let us move to example number 3. Example number 3 is -2/3 and 4/5. Okay, let us equalize the denominator. अगर ये दोनों को इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 15. ओके, लेकिन इनका सोचो न्यूमरेटर का. इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर मिलेगा यहाँ पर -10 एंड हियर +12. बहुत सारे मिलेंगे. ओके, ये पहले ओरल कैलकुलेशन करके रखना है. ठीक है. सो देयरफॉर मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल. सो -2/3 एंड यहाँ पर है 4/5. इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. राइट. अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही है. इज इक्वल टू हियर यू विल गेट -10/15 एंड हियर यू विल गेट 12/15. ओके, नाउ -10 और 12 in between them how many numbers are there? Many are there. Okay, so therefore 3 rational numbers.
ओके, -10 से बड़ा कौन सा है? -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, कितने भी हो लिखो, जितने हैं उतने लिखो. -4/15, -3/15, -2/15, then -1/15, then 0, then 1/15, then 2/15, 3/15, 12 तक. This many numbers are there in between these two rational numbers. ये दोनों rational numbers in between -2/3 and 4/5. Right? Now let us move to example number 4. Example number 4 is 7/9 and -5/9. ये तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स उन्होंने इक्वली दिए. छोटा नंबर कौन सा है? -5/9 छोटा है. उससे बड़ा कौन सा नंबर है? -4/9, -3/9, -2/9, -1/9, 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9. Right? 6/9. Okay, all these are the rational numbers which are lying in between these two rational numbers. Next example is there, -3/4 and +5/4. Okay, तो -3/4 से बड़ा कौन सा है? -2/4, उससे बड़ा -1/4, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1/4, उससे बड़ा 2/4, उससे बड़ा 3/4, उससे बड़ा 4/4. इसका मतलब 1. ओके, 4/4 का मतलब क्या है? 1. ओके, all these numbers are lying in between these two rational numbers. ओके, 1 से बड़ा तो 5/4 है. Right? Then coming to example number 6, 7/8 and -5/3. पहले उसके डिनोमिनेटर इक्वल करो. ओके, तो 3 के टेबल में 8 नहीं है, 8 के टेबल में 3 नहीं है. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24. हाँ, तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड ईयर 5/3, इसको मल्टीप्लाइड बाई 8. देखो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 24. तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. आंसर यू विल गेट 21/24 एंड ईयर 40/24. अब देखो ये दोनों के बीच में बहुत सारे, सॉरी हियर इट इज माइनस, आई फॉरगॉट द साइन. ओके, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -40 यानी दोनों में छोटा कौन सा है? -40/24. तो उससे छोटा -39/24, -38/24. लाइक दिस. यहां कहां तक लिखते जाओ 0, उसके बाद 21/24 तक. लाइक दिस you will get many. Many are there. Then example number 7, 5/7 and 11/7. ये तो डायरेक्टली सीधा आंसर मिल गया, डिनोमिनेटर इक्वल है. देन 6/7, 7/7 यानी 1, 8/7, 9/7, 10/7. These are the numbers between the two given rational numbers. Then number 8, 0 and -3/4. 0 -3/4. ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 0, अब दोनों के डिनोमिनेटर बढ़ा. अब 0 का डिनोमिनेटर क्या है वो तो अब तक मालूम नहीं किसी को, लेकिन कंसीडर करते हैं हम लोग. अब ये समझो ये -3/4 है, इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो इसको भी अगर 0/0 यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है तो 2. ओके, तो इसको कंसीडर करते हैं. सपोज 8, यहां पर 8 कंसीडर करते हैं, मीन 0/8 एंड -6/8. ओके, इन बिटवीन देम many are there, many numbers you will get.
यानी -6/8, -5/8, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, then 0. Okay, all these many are there in between those two rational numbers.